Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, we are discussing our chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. In the last session, we have discussed about the linkage, discovery and chromosome theory of linkage. Today we will discuss about the kinds of linkage. Kinds of linkage. First is complete linkage. First is complete linkage and second is incomplete linkage. What is complete linkage? The genes closely located in the chromosome show complete linkage as they have no chance of separating by crossing over and are transmitted together to the same gamete and same offspring. Thus the parental combination of the trait is inherited as such by the young one in case of the complete linkage. एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं, पास पास पड़े हैं और क्रॉसिंग ओवर के टाइम भी एक ही गैमेट में जाएंगे, एक ही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, एक ही पेरेंट के कॉम्बिनेशन यंग वन में इनहेरिट करेंगे. तो दीज आर द कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज. द जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं लेकिन दूर दूर पड़े हैं. दे शो इनकम्प्लीट लिंकेज बिकॉज दे हैव ए चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड ऑफ गोइंग इनटू डिफरेंट गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स. अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे और अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स में भी जा सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लिंकेज? फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज. कौन से फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज. नंबर 1, एज. नंबर 1, एज. Besides the distance between the genes, the following psychological, physiological and environmental factors affect the genes. Number 1, age. With advancing age, the chances of crossing overs are less and increases the strength of the linkage. Crossing over के चांस कम हो जाते हैं और linkage के chances बढ़ जाते हैं. Second is temperature. Next is temperature. Rise in temperature increases the chances of chiasma formation, thus decreasing the strength of the linkage. And third, X-rays. Exposure to X-rays reduces the strength of the linkage. Next is the significance of linkage. What is the significance of linkage? First, it greatly reduces the chance of formation of new genes. Reduces the formation of new combinations of genes. New combinations of genes. नए जीन्स के कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस को डिक्रीज कर देता है. सेकेंड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वैल्यूएबल ट्रेड्स. मेंटेनिंग द वैल्यूएबल ट्रेड्स. Third, linkage disallow the plant and animal breeders to combine all the desirable traits in a single variety. Linkage disallow the plant and animal breeder to combine all the desirable traits. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर क्रॉसिंग ओवर. अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर मीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर और genetic recombination.
genetic recombination. Crossing over is a major source of absorbable genetic variations within the population. जो दिख रही होती हैं, जो वेरिएशंस जो सामने आती हैं, उसका मेन सोर्स क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आती है किसी भी पॉपुलेशन में। 1909 Belgian cytologist Jensen observed chiasmata formation during the prophase of meiosis I. Then, in 1910, Morgan found that chiasmata formation lead to the crossing over of alleles by breaking and reunion of homologous chromosomes. जब मियोसिस होता है उसमें प्रोफेज के टाइम जब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो ब्रेकअप होता है उनका और वो अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। लेटर इट वाज फाउंड दैट क्रॉसिंग ओवर ऑफ अलील्स अकर बिटवीन वर्चुअलिटी ऑल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। उसके बाद ये फाइंड आउट हुआ कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये तकरीबन हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है मियोसिस के टाइम। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर? अब क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द corresponding segments of the adjacent paternal and maternal chromatids of the synapsed homologous chromosomes in the pectin of meiosis I. जैसे लिखिए पहले व्हाट इज द मीनिंग। हाँ जी, मीनिंग मीन्स इट इज द म्यूचुअल exchange of segments of the adjacent paternal and maternal chromatids of the homologous chromosomes in the meiosis I। तो जब कैसे होता है पहले मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पड़े हैं एक ही साइज के दोनों पास पास, ठीक है जी। जब मियोसिस I की पैकिटीन स्टेज होगी तो इनमें साइनेप्सिस होगा। तो उस साइनेप्सिस के दौरान ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं। ये हो गए इसके क्रोमेटिड्स। तो जब ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास आएंगे तो उस टाइम इनमें एक्सचेंज होगा। ये क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होंगे। क्रोमेटिड्स कैसे एक्सचेंज होंगे? ये वाला सपोज इधर चला गया, ठीक है जी। तो क्या होगा? ये इधर चला गया तो इसका क्रोमेटिड इसके साथ लग जाएगा, इसका क्रोमेटिड इसके साथ लग जाएगा। तो ये है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मीन्स द होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर। पूरा का पूरा पेयर दूसरे क्रोमोसोम के पास आएगा, ठीक है जी, और उनकी पेयरिंग हो जाएगी। दिस पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। उसके बाद जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हम बाइवेलेंट बोलेंगे। देयर क्रोमेटिड्स आर नॉट विजिबल एट दिस स्टेज। अब ये साइनेप्सिस बाइवेलेंट बन गए हैं, ठीक है जी। बाइवेलेंट के बाद ये बोलेंगे टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड मीन्स क्रोमेटिड ऑफ ईच साइनेप्स्ड क्रोमोसोम स्लाइटली सेपरेट। ये क्रोमेटिड्स, ये जो आर्म्स हैं क्रोमेटिड्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगी एंड बिकम विजिबल, अलग अलग फैल जाएंगी और अलग अलग दिखेंगी, ठीक है जी। उसके बाद होगी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आल्सो अकर इन दिस स्टेज। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी है, ये इसकी है। नॉन सिस्टर मीन्स ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम बन जाएगा। सिमिलरली ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, उनकी रीयूनियन हो जाएगी, रीजॉइनिंग हो जाएगी, तो ये होगी क्रॉसिंग ओवर।
ठीक है जी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर द साइनेप्टिक फोर्सेस एंड, ये जो साइनेप्टिक फोर्स है, साइनेप्स बना है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पेयर पास में आया है, वो टूट जाएगा और वो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब रिजल्ट क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर का? क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा? सी, यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन्स होंगे ए एंड बी, सपोज ए एंड बी दो जीन्स हैं, एक पेरेंट से एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं, जिसके ऊपर ए एंड बी पड़े हैं। ठीक है जी, एक पेयर के ऊपर, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं। एंड देयर रिसेसिव अलील ए एंड बी फ्रॉम द अदर पेरेंट लाई इन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ दैट पेयर। और ये ए और बी ये रिसेसिव हैं किसी करेक्टर के, ये डोमिनेंट जीन है, दोनों ये रिसेसिव जीन्स हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर। इंडिविजुअल बीइंग हेटेरोजाइगस विल प्रोड्यूस ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। हेटेरोजाइगस है, सपोज मेल है, तो उसने 2 तरह के स्पर्म्स बनाने हैं। अब क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होती है, इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर बिटवीन द जीन्स, तो क्या होगा? इफ क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द जीन्स द इंडिविजुअल विल फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो सिर्फ ए और बी जीन्स एक तरफ रह जाएंगे और ए और बी एक तरफ रह जाएंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो 4 चांसेस बन जाएंगे, ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा और हमारा दूसरा बनेगा फिर सॉरी ए बी हो गया, ए बी हो गया, फिर बनेगा ए बी और ए बी। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगी हमारे पास अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है जी। दस लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। अगर नहीं होती है तो लिंकेज होगी, अगर हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर होगी। इट मीन्स लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में भी सिंगल, डबल और मल्टीपल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स। कई बार जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं एक ही जगह पे टच करते हैं, वहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगी। कई बार 2 जगह पे टच कर जाते हैं, जैसे ये जो होमोलोगस हैं और सेम यहाँ पे 2 जगह से टच कर रहे हैं, तो ये डबल हो गई। तो कई बार कई जगह पर टच कर जाते हैं, दैट इज मल्टीपल। वो कैसे होगी? इस तरह से टच करते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होगी। सिंगल एक जगह टच कर गए, डबल 2 जगह हो गए, मल्टीपल कई जगह पे टच कर जाता है क्रोमोसोम। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर? सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। Number 1, distance. Number 1 is distance. The frequency of crossing over of genes is directly proportional to the distance between them in the chromosomes. जितना ज़्यादा distance होगा उतनी ज़्यादा crossing over ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी crossing over कम होगी. Next is the age. Crossing over frequency generally decreases with advancing age. Next are the X-rays. X-rays increases the frequency of crossing over. Number 4, sex. Crossing over has not been reported in male fruit fly. Male mammals have less frequency of crossing over. Next, 4th, temperature. Variation in temperature increases the frequency of crossing over. Next, location. Location of genes near the ends and centromere reduces the frequency of chromosomes. Next are the chemicals. Many chemicals found in food are known to alter the crossing over frequency in animals as well as in humans. So these are the factors that affecting the crossing over.
Now what is the significance of the crossing over? Significance of crossing over. Number 1. It is an important factor in sexual reproduction. It produces individuals having new combinations, if traits, due to gene recombination. New combination may prove helpful in the changed environment, means it produces new combinations of genes. It produces new combinations of genes. Second, the variations introduced by crossing over forms raw material for evolution to occur. जो वेरिएशंस क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारा एवोल्यूशन फॉर्म होता है. वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर फॉर्म्स रॉ मटेरियल for evolution. It forms raw material for evolution. Next है, crossing over has helped in establishing the concept of linear arrangement of genes. It helps in establishing the concept of लीनियर अरेंजमेंट ऑफ. इससे पता चला है कि जो जीन्स हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में पड़े हैं ऑफ जीन्स. नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स यूजफुल रिकॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटीज. इट प्रोवाइड्स यूजफुल रिकॉम्बिनेशंस to plant and animal breeders. So this is the significance of the crossing over. हाँ जी, अब ये जो लिंकेज थी वो मेंडल ने नहीं फाइंड आउट की. वाई मेंडल मिस्ड लिंकेज? वाई मेंडल मिस्ड लिंकेज? मेंडल से लिंकेज क्यों मिस हो गई? सी, मेंडल could not note linkage because the 7 characters he studied in the garden P had their genes located in different chromosomes. तो जो उसने 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे स्टडी करने के लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े थे और बड़े दूर दूर पड़े थे. दे गॉट सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, और वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम एक दूसरे से सेपरेट हो गए. द जीन्स फॉर प्लांट हाइट एंड पॉड फॉर्म क्लोज लाई. जो हाइट थी प्लांट की और पॉड का साइज था, दे लाई क्लोज ऑन द, वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़े थे. वो थोड़ी बहुत लिंकेज शो कर रहे थे, बट मेंडल्स वर्क इंडिकेट्स दैट ही परहैप्स नेवर मेड ए क्रॉस विद हिज कॉम्बिनेशन. तो मेंडल ने कभी भी ऐसा कोई क्रॉस नहीं बनाया जिसमें लिंकेज शो हो. ये किसने देखा? इट हैज़ बीन फाउंड बाय एस डिक्सिट दैट मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स लाई ऑन द 4 क्रोमोसोम्स. ठीक है जी. So this is enough for today. We will continue this chapter in the next session. Thank you and have a nice day.